Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. Today we are going to start chapter number 11 of your D2 book, that is trigonometric ratios. इस चैप्टर में हम हर चीज़ तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमें बिल्कुल डायरेक्टली समझनी होंगी, फ़ेस टू फेस बात करनी होगी. ऑनलाइन हम थोड़ा समझ लेंगे लेकिन उस तरीके से हम क्लियरली हर बात को नहीं समझ पाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट. अच्छा, before I start doing it, I need to give you guys a basic information about triangles. We had the same information about triangles when we were doing Pythagoras theorem. If you remember, हमने जो Pythagoras theorem किया था तो मैंने आपको ये तमाम बातें बताई थी, but for the recalling purpose we will do it again. So here is my triangle. I hope everyone can see it. So here is my triangle. It's a right angle triangle. If we recall, triangles हमारे पास बहुत तरह के होते हैं. We have triangles of different types. We have a right angle triangle. Then we have a triangle, let's suppose, which is not a right angle triangle, equilateral triangle. We also has an obtuse angle triangle. I may not find it over here. Let's see if I can find some. It's not available here. लेकिन हमारे पास, मैं इसको एज अ स्केच ड्रॉ करके दिखा देती हूँ. हमारे पास एक ट्राइंगल ऐसा है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होता है, ना वो इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है. इट्स एक्चुअली एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. सो लेट्स डू इट. This was my right angle triangle. This was a right angle triangle. Right angle triangle. This was an equilateral triangle, यानी जिसके तमाम के तमाम एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं. Equilateral triangle. Then we have an obtuse angle triangle. It's an obtuse angle. Obtuse angle triangle. क्योंकि ये एंगल किससे बना, ये जो ट्राइंगल है, it actually has an obtuse angle. Then if we go further, then we will be having an acute angle triangle, जिसमें acute angles होते हैं. बेसिकली वो ट्राइंगल जिसमें हमारे पास क्या हो, जिसमें हमारे पास acute angles हो. Let me make one for you guys. This actually has acute angle. ये भी एक acute angle है, ये भी एक acute angle है. So this is an acute angle triangle. My drawings are not that precise, but I hope the concepts are clear to you. So let's move on. Now, अच्छा, अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल के बारे में, तो हमने ये तमाम बातें डिस्कस की थी when we were doing Pythagoras theorem. अभी जो मैं आपके साथ डॉक्यूमेंट जो खोली हुई है, एक्चुअली अ पार्ट ऑफ खान अकेडमी. इंशाल्लाह आई विल बी अपलोडिंग इट टू यू गाइज. कि अगर किसी को मेरा लेक्चर क्लियर नहीं होता है तो वो खान अकेडमी पे जाके अपनी क्लासरूम में इसको देख सकेगा. सो हियर लेट मी कंटिन्यू. The first thing is the hypotenuse of a right angle triangle is always the side opposite to the right angle. यहाँ पे मैंने कुछ important बातें की है. Here it is. Right angle opposite and hypotenuse. hypotenuse जो है
साइड होती हैं। तो बेसिकली हाइपोटेन्यूज जो है राइट एंगल ट्रायंगल की वो साइड है जो बिल्कुल राइट एंगल के ऑपोजिट हो। पहला क्राइटेरिया हमारे पास बेसिकली ये, पहली बात जो थी वो ये थी, पहला जो हमारे पास क्राइटेरिया था हाइपोटेन्यूज साइड को होने का, वो पहले हमारे पास ये था। अगर अब बात करें तो जो दूसरी बात उन्होंने कही है वो यहाँ पे ये है कि बेसिकली वो साइड जो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड है। ये बात हमें पता है कि जो हमेशा साइड लॉन्ग होगी हमारे राइट एंगल ट्रायंगल में वो ही हाइपोटेन्यूज होगी। अगर हम इस डायग्राम में देखें, इफ यू लुक इनटू दिस डायग्राम, वी हैव थ्री साइड्स। वी हैव फर्स्ट दिस साइड, we have this side, we have this side, but amongst these three the longest one is basically the hypotenuse, the one marked here. So I hope it's clear to everybody. Now the second most important thing is basically the opposite side. इससे पहले कि हम opposite side को पढ़ें, हम इससे पहले जुमला पढ़ लेते हैं। The saying is that the other two sides are called the opposite and the adjacent. कह रहे हैं कि जो बाकी दो साइड हैं, तीन साइड्स होती हैं एक ट्रायंगल। उनमें से हमने पढ़ा कि बेसिकली हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड होती है। वो कह रहे हैं कि जो बाकी दो साइड्स हैं, one is known as the opposite side and the other is known as the adjacent side. Now they're telling us that these sides are labeled in relation to an angle. कह रहे हैं कि opposite side और adjacent side डिपेंड करती हैं एंगल के। और वो किस एंगल पर डिपेंड करती है? बेसिकली दे डिपेंड ऑन दी टू एंगल्स। अब यहाँ पे वो किन टू एंगल्स की बात करें, अगर हम ऊपर देखें, इफ़ यू लुक अप हियर, बेसिकली वी हैव अ ट्रायंगल, दैट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल था। अब यहाँ पे हमारे पास एक राइट एंगल है। इसके अलावा हमारे पास अगर देखा जाए, वी हैव टू एंगल्स, वन इज़ दिस एंगल एंड वन इज़ दिस एंगल। अब मेरे जो बाकी दो साइड्स हैं, कहने का मकसद है कि जो एक ये साइड है और जो एक ये साइड है, इनमें से एक ऑपोजिट साइड होगी और इनमें से एक एडजेसेंट साइड होगी। लेकिन कैसे होगी इसको हम अभी आगे देखेंगे। बेसिकली व्हाट विल हैपन इज़ दैट हम अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे इस ट्रायंगल में, इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल, आई विल चूज एनी वन acute angle. What I'll do is that I will choose any one acute angle. So here I have two acute angle, I have one acute angle here and I have one acute angle here. I will choose any one of these two acute angles. For example, let's suppose I chose this angle, maybe I chose this angle. अब हम क्या करेंगे, let's suppose if I'm standing here, if I'm standing over here on this acute angle, तो अब वो साइड जो इस acute angle के ऑपोजिट है या उसके बिल्कुल सामने है, उस साइड को हम लोग कहेंगे कि वो कौन सी साइड है। बेसिकली दैट इज़ आवर ऑपोजिट साइड, द साइड ऑपोजिट टू द acute angle आई एम कंसिडरिंग। अगर मैं इस acute angle को देख रही हूँ तो वो साइड जो इस acute angle के बिल्कुल सामने है, उससे हम क्या कहेंगे, उसे हम ऑपोजिट कहेंगे। देन अब हम आगे बढ़ेंगे। बेसिकली एडजेसेंट क्या होती है, अगर मैं यहीं पे समझा दूँ वो बात, तो वो बेसिकली क्या होगी कि अगर यहाँ देखा जाए, तो मैंने दोबारा से बात रिपीट करी कि द साइड ऑपोजिट टू द एंगल आई एम रेफरिंग, वो साइड जो उस एंगल के ऑपोजिट है जिसको मैं प्रेफर कर रही हूँ, उस साइड को हम क्या कहेंगे, ऑपोजिट साइड कहेंगे। और अगर देखा जाए तो वो साइड कौन सी, यहाँ पे BC इज़ द साइड। हमेशा साइड